Okay. Good morning, students. We Morning, will sir. we will wait another 2 to 3 minutes so that your classmates can join. In the meantime, I will I'm want to tell you that today we will do question which is asked in various previous year examination of uh, various previous year examination like which is asked in ISRO, which is asked in UGC net, and we will do some of the question which is asked in gate also. uh, this time we will do some of the very different flavor of question from gate. Okay, so today's session is very important for them who really want to crack some of the competitive examination. As you know, from ISRO you can get a job of scientist. From UGC net you can do the research work. From gate you can got admission or got selected in various PSU, and as well as you can do the MTech after completion of your BTech. Okay, till now four of you have joined. Kindly inform your classmates that class is going on and join us quickly so that we can start our session as soon as possible. And I have provided you this question in your mm, uh, official operating system WhatsApp group. I think all of you got this question. Uh, Another 2 minutes, we will wait. Um, Hope all of you are enjoying your good health, and I wish that you will keep in this good health, and with the grace of the God, your family will also in this position. किसी के फैमिली में कोई बीमार बीमार तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? भले चंगे हैं ना? ओके, लगता है ओके, that's fine. That nice to hear that in this pandemic time that all of you are doing very well. So जितना से जितना घर में ही रहिए, बाहर कम से कम निकलिए, ठीक है? This is my suggestion for all of you. Okay, so let's start our today's session. Till now, six of you have joined. So let's start our today's session. This is the question which is asked in ISRO 2013. Okay, so let's begin our session with this question. A different flavor of question we have here. Kindly read this question, and I am giving you a time of 2 minutes to complete this question. And after completion of this 2 minutes, I will try to give you a thought about this question and solve this question. Yes, student, you have a 2 minute time. Timer is ticking. Solve this question. Sir, question is not visible. Oh, okay, you have Question sent is it. in your WhatsApp group.
Do I have to share it again? No, sir, it's okay. ISRO 2013. Okay, Ashish has replied with the answer D. Very good, Ashish. And I think within 1 minute he have replied. Very good. Okay, so one answer is coming as a option D. Shubham has also responded with the answer D. Simran is asking which is question number. Question number, I think it is asked in ISRO 2013. Sumit has also responded with the answer D. So it means most of you have the same answer, and congratulations to all of you that you have did an awesome job. Answer D, option D is the right. So I'm asking to those who was not yet attempted this question, or them who was not able to solve. I will solve this question that so, and all of you please follow this approach to have a exact solution. So I'm reading aloud this question. A particular parallel program computation require 100 second. It means 100 second का requirement है आपका system मतलब process को. Okay. अगर when executed on a single CPU पे रन करेगा तो 100 सेकेंड का रिक्वायरमेंट होगा. इफ 20% ऑफ कंप्यूटेशन इज स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल, इट मींस कि आप इसको वेरियस पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं इफ यू हैव मल्टीपल प्रोसेसर, बट स्टिल 20% ऑफ द टाइम विल बी द सिक्वेंशियल. फॉर द सिक्वेंशियल ये आपको सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करना ही पड़ेगा. एंड रेस्ट 80% ऑफ द टाइम, 80% जो एग्जीक्यूशन है वो आप पैरेलल कर सकते हैं इफ यू विल हैव ए मल्टीपल प्रोसेसर. सो वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज. 100 डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 100 के लिए ये पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग टाइम हो जाएगा आपका. This sequential time will be 20 seconds and this parallel time will be 80 seconds. Okay, so this is the fact. Now we have given this then the theoretical, the best possible elapsed time for the program running on 2 CPUs में अगर ये रन कर रहा होगा तब हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, और अगर 4 CPUs में रन कर रहा होगा तब कितना रिक्वायर्ड होगा. पहले हम 2 CPUs को देखते हैं. तो 2 CPUs इट मींस CPU 1 होगा हमारे पास और CPU 2 होगा हमारे पास. इन दोनों में हम पैरेलल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट 20% ऑफ द टाइम यू हैव टू डू द सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग. तो आपका कोई प्रोसेस X है जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं, इसको हमने 20% टाइम तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करना ही पड़ेगा. अब रेस्ट जो 80 सेकेंड का आपका 80 सेकेंड का टाइम है, इसको 2 CPUs है तो 2 पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं. तो इट विल take 40 second, 40 more second to do the computation, because we have we have two CPUs here. Okay, we have two CPUs here. तो 20 तो दोनों CPU में टाइम लेगा ही, क्योंकि ये सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग है. यहाँ पे 20 पे डायरेक्टली एलोकेट होगा. तो यहाँ भी 60 तक जाएगा. तो आपका 2 CPU का जब सिनेरियो होगा तो इट विल टेक 60 सेकेंड
नाउ एज फॉर द 4 सीपीयूज के लिए हम प्रोसीड करते हैं, तो 4 सीपीयू के लिए क्या सिनेरियो होगा, 20 स्टिल हमको 20% ऑफ द टाइम क्या करना पड़ेगा, 20% ऑफ द टाइम हमें सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो px है, अब 4 सीपीयू है तो 4 होंगे हमारे पास, यहाँ पे 4 सीपीयूज लगे हुए हैं एक साथ, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, बट स्टिल 20% ऑफ द टाइम तो ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो 20 सबको और एलोकेट करना पड़ेगा, सारे सीपीयूज में वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 और इनको 20 पे ही एलोकेट होगा, तो सबके लिए 22, 40 जाएगा यहाँ पे, 22 40 जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से फॉर द 4 CPUs it will complete in 40 seconds. Okay, so option D is the right choice. For the 2 CPUs it will take 60 seconds, and for the 4 CPUs it will take 40 seconds. All of you got this concept? Pappu is asking what is sequential and parallel means here. Sequential आप देखते हैं ना कि जैसे कि आपका क्या हुआ, आप क्यू में जो वर्क करते हैं, क्या होता है कि आप जैसे कि विंडो पे गए, आप टिकट काउंटर पे गए, विंडो पे आप लगते हैं, तो क्या होता है वहां पहले पर्सन वन को क्या करता है, एंटरटेन करता है टिकट काउंटर, उनको टिकट प्रोवाइड करता है, फिर पर्सन 1 वहां से एग्जिट हो जाता है, उनके पीछे जो पर्सन 2 लगा होता है, पर्सन 3 लगा होता है, पर्सन 4, ये आपका अगर एक सिंगल विंडो है टिकट काउंटर का, तो क्या होगा, पहले पर्सन 1, देन पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो गया। बट यहीं पे अगर हमारे पास 4 टिकट काउंटर होते तो क्या होता, पर्सन 1 यहाँ पे आता, पर्सन 2 यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकता था, पर्सन 3 यहाँ पे करता, और पर्सन 4 टिकट काउंटर 4 पे अपना वर्क करता। तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, आपके 4 टिकट काउंटर हैं, चारों पे आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको सिक्वेंशियल बताया, और सेकंड आपको पैरेलल कैसे वर्क करेगा ये हुआ, ठीक है। सो डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज पैरेलल एंड व्हाट इज सिक्वेंशियल? पप्पू, डिड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? Okay, hope you got this particular solution for question asked in ISRO 2013. Okay, yes, yes. So सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, student. Can we move forward to the next question? Yes, sir. Okay. Now, next question, it is asked in ISRO 2015. This question is asked in ISRO 2015. ठीक है, चलिए, I am providing you a time of 2 minutes. Solve this question. After expiration of this timer, I will give you the solution for this problem. The problem, it is asked in ISRO 2015. Okay, Ashish has responded with answer C. Smriti Rupam also responded with C. Pappu has also responded with C. Subham is also responded with C. Simran C. Shubham C. How many Shubham is there? Sumit has also responded with C. Very good, student. And the solution which you have provided is right. Prem Prakash has also responded with C. So, आपका जो सर्कुलर क्यू होता है, दैट इज द राइट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम।
now do I have to give the detail about this? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक आपका एन प्रोसेस का आपका सिस्टम एन प्रोसेस कंटेन कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एन प्रोसेस हमारा कंटेन कर रहा है और इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। अब किस डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे जो बेस्ट सूटेड होगा किसके लिए, रेडी क्यू के लिए। तो आप एक बात तो जानते हैं, इट इज अ रेडी क्यू, रेडी क्यू। तो इट मींस आप स्टैक का तो यूज करेंगे नहीं, ट्री का यूज करेंगे नहीं, होगा तो क्यू ही यूज होगा, आइदर सिंपल क्यू होगा या सर्कुलर क्यू होगा, ठीक है। सो टाइमर इज ओवर and many congratulations to them who have solved this within the time, and to them also who has attempted this question. So either it will be the simple queue or the circular queue, but simple queue क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज हमारा n प्रोसेस सिस्टम है, इट इज नॉट डिफाइंड, n हियर इज नॉट डिफाइंड। n कैन बी आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000, तो कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि आपको सिंपल क्यू में क्या होगा कि वी हैव टू स्पेसिफाई दैट व्हाट इज द फ्रंट एंड व्हाट इज द एंड ऑफ दिस क्यू, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो आइदर अगर आप बहुत बड़ा क्यू ले लेंगे, बहुत बड़ा क्यू ले लेंगे जहां की रिक्वायरमेंट लेस होगा आपका, तो इट विल वेस्टेज ऑफ स्पेस। अगर आपका रिक्वायरमेंट लेस है और रिक्वायरमेंट आपका क्या है कि आपका लेस है और आपने ज्यादा स्पेस का ले लिया, वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा। और अगर आपका स्मॉल क्यू आपने ले लिया और आपका रिक्वायरमेंट हाई है, तो वहां पे आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। सो इन दैट सिनेरियो आपका क्या हो जाएगा, क्यू विल बी इनएफिशिएंट हो जाएगा। अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू में जैसे ही हम फ्रंट से डिलीशन करते चले जाते हैं तो फ्रंट आपका क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा, फ्रंट आपका चेंज होता चला जाएगा, और फ्रंट जब एंड में आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, तो सर्कुलर क्यू हैव अ फैसिलिटी दैट यू कैन जंप टू द फर्स्ट लोकेशन, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर क्यू द राइट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, so this is the solution and this is the concept related with this problem. I hope all of you got this concept. Can we move forward, students? Yes, sir. Okay, so next question, it is asked in UGC NET 2017. Okay, and I am giving you a time of 2 minutes to solve this problem. It is asked in UGC NET. UGC NET में पूछा गया था 2017 में। I have given you 2 minute time to solve this problem. Let's see. Okay, somebody has responded. Ashish has responded with the B. Smriti Rupam has responded with B. Very good. And within 40 seconds you have responded. It is good to see this. Sumit has responded with B. Subham, Prem Prakash, all of you have responded with B. Simran, she has also responded with B. Manisha Kumaria has responded with B. Very good student. So all of you have given the same answer. So I think you got the concept. Subham, again, Subham Kumar, Subham 34 has responded with B. Okay.
So all of you have responded with the same answer, and your answer is very much right. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन कौन कौन सा आपका यहाँ पे जो गिवन एल्गोरिथम है उनमें कौन कौन से एल्गोरिथम कॉज करेगा। तो आई थिंक यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारवेशन, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग। व्हाट इज स्टारवेशन? स्टारवेशन मींस प्रोसेस आपका, ओके टाइमर इज एक्सपायर्ड। प्रोसेस आपका क्या होता है, हम इसको सीपीयू जो इसका रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस आपका स्टार्व हो रहा है ड्यू टू द एल्गोरिथम। ओके बेटा, सो स्टारवेशन। तो अब इनमें से आपको गिवन है क्या एफसीएफएस आपका स्टारवेशन करता है? तो नो, एफसीएफएस आपका कभी भी स्टारवेशन नहीं करता है, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपके प्रोसेस आए हैं उस ऑर्डर में उनको सीपीयू अवेलेबल हो जाएगा। स्टारवेशन इट मींस इनफिनाइट टाइम के लिए उनको आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउंड रॉबिन। क्या राउंड रॉबिन करता है? नो, राउंड रॉबिन तो आपका एक इंटरैक्टिव सिस्टम है। आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम स्लाइस आपका नेक्स्ट प्रोसेस को चांस प्रोवाइड किया जाता है। सो राउंड रॉबिन भी आपका स्टारवेशन नहीं करता है। नेक्स्ट, क्या आपका प्रायोरिटी करता है? तो यस, प्रायोरिटी कर सकता है, क्योंकि आपका अगर एक लेस प्रायोरिटी प्रोसेस है तो अगर आपके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस से हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसिंग कंटिन्यूस आते जाएंगे आपके रेडी क्यू में, तो हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, तो जिनकी हाई प्रायोरिटी उन्हीं को सीपीयू एलोकेट करेंगे, तो प्रायोरिटी कैन कॉज द स्टारवेशन। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। अब यहाँ पे कहा ही गया है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेस को हम देंगे, तो जिनका लॉन्ग रिक्वायरमेंट होगा, जिनका लॉन्ग बर्स्ट टाइम की वैल्यू होगी, उसको हम सीपीयू एलोकेट नहीं कर पाएंगे, तो इट विल आल्सो कॉज स्टारवेशन। नेक्स्ट है आपका एसआरटीएफ। एसआरटीएफ का क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि रिमेनिंग टाइम जिसका सबसे स्मॉल होगा हम उसी को देंगे, तो अगेन इट विल कॉज द स्टारवेशन। सो C, D, and E is the algorithm which will cause starvation, and we got this in option B. So option B is the right choice, and all of you are responded with option B. So can we move forward, students, for the next problem? Now, this question it is asked in UGC NET 2016. Okay, so I'm giving you a time of 2 minutes to solve this problem. After expiration of the time, I will try to attempt this problem. All of you read the theory of this problem. Now we got some response. Ashish has responded with option C. Smriti Rupam has responded with option B. Okay, so दो option आ रहे हैं, B and C. Pappu is also responded with B. Okay, दो लोगों ने B रिस्पॉन्ड किया है एंड विद इन 1 मिनट इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। लेट्स सी। Simran Kumari has also responded with option B. Okay, 3 has responded with B. Prem Prakash Gupta has also responded with B. Very good. Very good, students. You are doing very good today's session.
Manisha Kumari has also responded with B. Just read the question and you will get the concept that what is it is asking. It is very easy problem. यूजीसी नेट के बारे में मैं बताऊं तो यूजीसी नेट में जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और हमें लिटिल टाइम होता है. तो ना timer is expired, student. Congratulations to all of you. Subit Kumar has also responded with B. Okay. So मैं ये कह रहा था कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और टाइम जो होता है वो 3 आवर का होता है, विच इज कंपैरेटिवली वेरी लेस. जो आपके इसमें बेसिकली आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन कहा जाए तो इन कंपैरिजन विथ द, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत इजी होता है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके गेट से रिलेटिवली इसका जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज इजी. ओके, क्योंकि आपको भी जैसा पता होगा कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो इनका होता है वो लिटिल बिट लेस कॉम्प्लेक्स होता है देन गेट और इवन स्लो. Okay, so talking about this question, I'm giving you the I will give you the solution, and I am telling you the option B is the right option. Who have responded with B, they are did the great job and they have come up with the right solution. So I'm reading this question. A scheduling algorithm assign priority, ठीक है, प्रायोरिटी असाइन करता है प्रोपोर्शनल टू द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस. जितना देर वेट किया इसके प्रपोर्शन में क्या होगा, प्रायोरिटी एलोकेट होगी. किसको, प्रोसेस. अब देखिए नेक्स्ट, एवरी प्रोसेस स्टार्ट विद द जीरो प्रायोरिटी विच इज लोएस्ट. जितने भी प्रोसेस होंगे सबकी प्रायोरिटी क्या होगी, जीरो होगी. और जीरो कहता है कि लोएस्ट है. इट मींस जैसे जैसे प्रायोरिटी की इंटीज आपका न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा उसका प्रायोरिटी हाई होता जाएगा. आपका न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी इंक्रीज होगा तो आपका हाई प्रायोरिटी होता चला जाएगा. ठीक है, ये कहना चाहता है द शेड्यूलर reevaluates the process priority at every t unit of time. It means t टाइम के बाद वो क्या करता है, हर एक t टाइम के बाद वो रीइवैल्यूएट करता है कि क्या प्रायोरिटी है. इट मींस कि t टाइम के बाद जितनों ने वेट किया, हो सकता है कि किसी एक प्रोसेस ने प्रोसेस कर रहा था तो दैट विल बी दैट इज डूइंग द प्रोसेस. आपका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेसिंग कर रहा था तो इट मींस दैट दैट प्रोसेस इज इन द रनिंग स्टेट. ओके, दैट इज नॉट वेटिंग. जो रिमेनिंग प्रोसेस होंगे जो वेट कर रहे होंगे तो उनकी प्रायोरिटी इवैल्यूएट होगी टी पे. ठीक है, तो जो आपका प्रोसेस रनिंग कर रहा था उसकी प्रायोरिटी जो पहले थी वही रह जाएगी. ठीक है, और ये टी टाइम के बाद रीवैल्यूएट हो रहा है एंड डिसाइड नेक्स्ट प्रोसेस टू शेड्यूल. इट मींस कौन सा प्रोसेस हमारा नेक्स्ट आएगा ये आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रायोरिटी होगा. इट मींस दैट इट इज शोइंग दैट इट इज इन प्रिमिटिव इन नेचर. इट इज प्रिमिटिव इन नेचर बिकॉज आपका जो पहले से प्रोसेस कर रहा होगा उस प्रोसेस को हम सीपीयू से बाहर निकालेंगे, सीपीयू से बाहर निकालेंगे और जिसकी अब हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे. और ये हर एक टी टाइम के बाद हमारा
ये प्रोसेसिंग होगा। इफ द प्रोसेस हैज नो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ऑल अराइव एट टाइम 0, सभी का अराइवल जो है, अराइवल टाइम क्या है, 0 पे ही है, ठीक है। और किसी को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट मींस इनपुट आउटपुट का वर्क कोई नहीं कर रहा है। सर सारे जितने हैं सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस हैं, ठीक है। देन द शेड्यूलर इंप्लीमेंट विच क्राइटेरिया, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो एफसीएफएस तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे हम बात करें कि एक टाइम इंटरवल टी के बाद इवेल्युएट हो रहा है। अब चूंकि प्रायोरिटी की बात हो रही है हर बार, तो लग रहा है कि क्या प्रायोरिटी हो सकता है या राउंड रॉबिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक टी टाइम के बाद कहा गया है कि हम ये इवेल्युएट करेंगे। तो देखते हैं कि अगर हमारा P1 था, P2 था, P3 था, ठीक है, अब सभी ने 0th टाइम पे ही अराइव किया, तो सभी की प्रायोरिटी क्या होगी, इनिशियल में सेम होगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, इनमें से जो विनर होगा, कौन विनर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अराइवल टाइम, सभी सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, और सबसे जो आपका प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी सबसे लेस किसका है, P1 का है, तो P1 विल बी द विनर, ठीक है। तो हम 0th टाइम पे इसको दिए। अब क्या बोला है, टी टाइम के बाद रीवैल्यूएट करते हैं, तो टी टाइम तक तो ये रन करेगा, तो टी तक ये रन किया, ठीक है। अब टी पे रीवैल्यूएट करेंगे, तो चूंकि P1 रन कर रहा था, तो इसकी प्रायोरिटी सेम रहेगी जो पहले थी। अब P2 टी टाइम के लिए वेट किया, तो इसका वेटिंग टाइम जो क्या हो गया, वेटिंग टाइम इसके लिए हमारा क्या हो गया, P1 के लिए 0 ही रह गया। अब P2 ने टी टाइम वेट किया था और P3 ने भी टी टाइम वेट किया था। अब बोलता है कि प्रोपोर्शनल होगा प्रायोरिटी, जितना वेटिंग टाइम करेगा, तो अब इसके लिए प्रोपोर्शनल होगा, तो इट विल बिकम प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो होगा, जितना देर ये वेट किया, मतलब 4 सेकेंड अगर ये वेट किया, 4 यूनिट के बाद अगर हम कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 4। तो अब प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी जो रनिंग कर रहा था वो लेस हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी लेस हो जाएगी। तो अब हमारे पास चॉइस होगा या आइदर P2 या P3, तो दोनों सेम ही टाइम पे अराइव किए हैं, तो यहाँ पे तो बात होगी। और नेक्स्ट क्या हो गया कि किसकी प्रोसेस आईडी लेस है, तो प्रोसेस आईडी P2 की लेस है, तो वी विल असाइन प्रोसेसर टू द P2। तो ये भी क्या करेगा, ये भी टी टाइम के लिए रन करेगा, 2T पे ये करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अब वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे चूंकि P2 रन करे, तो P2 की वेटिंग टाइम वही रह जाएगी। अब वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और वेटिंग टाइम इसका क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम एज इट इज, एंड दिस विल बिकम 4। तो अब यहां से विनर कौन हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो चूंकि अब हमारा P3 यहाँ पे विनर हो गया, ऑन दिस विल बिकम 3T पे। तो अगर हम यही चीज देखें, तो दिस इज बेसिकली द implementation of what, राउंड रॉबिन। क्योंकि हर एक टी टाइम के बाद आपका प्रोसेस क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, उसको सीपीयू से बाहर हम निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो वेट कर रहे होते हैं, उनमें देखते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा वेट किया होगा वो रेडी क्यू में सबसे आगे होगा, ठीक है। पहले P1 को मिला, रेडी क्यू में सबसे आगे था, फिर क्या हुआ, इसको यहां से इसका काम अभी कंप्लीट नहीं है, P1 को हमने पीछे भेजा, देन हम देखेंगे तो P2 को मिलेगा, क्योंकि P2 का वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, P2 की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, तो P2 को मिलेगा आफ्टर टाइम T2 T1, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट हमारा फिर क्या विनर हो जाएगा, P3, क्योंकि रेडी क्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, तो जो हमारे सबसे आगे खड़े रहेंगे उनकी प्रायोरिटी हाई होते चले जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, राउंड रॉबिन, ठीक है। आई थिंक, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So this is question number
This is this question is asked in GATE. This question is asked in GATE 2006. And again, I am giving you a time of 2 minutes to solve this question. Read the question carefully, get the data, what is asking, and draw the Gantt chart. It is asking about to calculate the average turnaround time. But here the algorithm for the CPU scheduling is different. It is LRTF. You can simply call it as it is a opposite version of SRTF. Okay, somebody has responded. Let's see who has responded. Ashish has responded with a 13 as answer to this problem. Option A. Ashish has responded with option A. Let's see. Smriti Rupam has also responded with option A. Very good. Pappu is also responded with 13, which is again option A. Very good. Very good, students. Now you are doing very great in sense of the solving question within the time. So timer has expired and three of you have responded, Ashish, Smriti and Pappu. They have responded with the answer A. And let's see that whether they have did the right or wrong. Okay, I'm telling you this is the right answer, students. Uh, let's see the solution because only few of you have responded with the solution. Some of you might have attempted this and they stuck somewhere. So लेट्स सी कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं. कंसीडर थ्री प्रोसेस विद द प्रोसेस आईडी. आपके यहाँ पे प्रोसेस आपको गिवन है, तीन प्रोसेस हैं आपके, उनकी प्रोसेस आईडी गिवन है. प्रोसेस आईडी 0, P0, P1 एंड P2 विथ कंप्यूटेशन टाइम बर्स्ट 2, 4 एंड 8 यूनिट. इनका बर्स्ट टाइम याद रखिए, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बर्स्ट टाइम 2, 4 and 8. All process arrives at time 0. सभी का अराइवल टाइम के बारे में बात करें तो इट इज अराइव्ड एट 0. ठीक है. कंसीडर द लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. LRTF को हम यूज कर रहे हैं. In LRTF, ties are broken by giving the priority to the process with the lowest process ID. अगर टाई हो गया, ठीक है, दो प्रोसेस है, दोनों ही का जो रिमेनिंग टाइम है वो लॉन्ग है, सेम वैल्यू है, तो जिनकी प्रोसेस आईडी कम होगी उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. टाइप ब्रेक करने का दे दिया है और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम. यहाँ पे मैं गैंट चार्ट ड्रॉ करूंगा एंड वी विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ CT एंड TAT और आप ATAT कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से इसका. ठीक है, तो वी विल ड्रॉ द गैंट चार्ट फर्स्ट. तो देखिए यहाँ पे सारे प्रोसेस आ चुके हैं. ठीक है, हमारे पास सिस्टम में सारे प्रोसेस हैं, 0th टाइम पे ही. इट मींस रेडी क्यू का क्या स्टेटस है, रेडी क्यू का स्टेटस है वी हैव P0, वी हैव P1 एंड वी हैव P2.
ओके, सो लॉन्गेस्ट टाइम किसका है, तो आपका P2 का है, दिस विल बी द विनर। तो 0 पे हम क्या करेंगे, P2 को असाइन करेंगे। कितने देर के लिए असाइन करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है, 4 है। तो इट मींस दैट कि आप देखिए अब आप इसको 4 के लिए अगर 4 यूनिट देंगे इसको, तो 8 माइनस 4 विल बिकम 4। तो क्या हो जाएगा, दोनों का उस केस में 4 4 हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट कि आपका अगर टाई होता है तो वी विल गिव द प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। इट मींस हियर वी हैव टू डू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, सो इट मींस हम इसको सिर्फ 4 ही दे सकते हैं, 5 यूनिट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाई होगा और टाई को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, P2 को 0 से लेकर के 4 तक हम CPU एलोकेट करेंगे। डिड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? आई होप सो। ओके, सो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो काइंडली रिस्पॉन्ड वाया द चैट बॉक्स, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन अगेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट आपका 4 पे एट टाइम 4 पे हमारा क्या होगा, P0 P1 P2 सारे अवेलेबल होंगे, और इनमें से P0 का बर्स्ट टाइम रिमेनिंग कितना बचेगा, 2, P1 का 4, P2 का भी 4। चूंकि लोअर प्रोसेस आईडी है P1 की, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, टाई हुआ था P1 और P2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, P1 को सेलेक्ट करेंगे। P1 को सेलेक्ट करेंगे, कितने देर के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि कितने देर के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, कितने देर के लिए हम इसको CPU प्रोवाइड करेंगे, ये बात है। तो हमारा अब देखिए अगर हम 1 यूनिट इसको प्रोवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम 3, ठीक है, दिस विल बिकम 3। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे विनर जो होगा 1 सेकेंड के बाद आपका विनर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो अगेन वी हैव टू डू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग टाइम है किसकी लॉन्गेस्ट हो जाएगी, P2 की रिमेनिंग टाइम लॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो P2 को हम प्रोवाइड करेंगे फिर से CPU। फिर से CPU हमको किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, P2 को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने देर के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम 1 सेकेंड के लिए प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका जैसे ही इसको 1 सेकेंड देंगे तो दिस विल बिकम 3, एंड ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा P1 P2 के बीच में, क्योंकि दोनों का सेम है। तो जिसका लोएस्ट प्रोसेस आईडी है फिर से हम उसको देंगे, तो P1 विल बिकम द विनर। तो और P1 को फिर हम कितने देर के लिए देंगे, 1 के लिए देंगे, तो 6 to 7 P1 जाएगा, और इसका रिमेनिंग टाइम बच जाएगा 2, एंड दिस विल बिकम 3। तो फिर से अगेन P2 विल बिकम द विनर, P2 विल बिकम द विनर, और हम क्या करेंगे, अगेन इसको 1 यूनिट प्रोवाइड करेंगे, तो दिस विल बिकम आल्सो 2। अब जैसे ये 2 होगा तो तीनों जो प्रोसेस हैं इनकी रिमेनिंग टाइम कितनी हो जाएगी, 2 to 2, ठीक है। तो अब इसमें विनर कौन होगा, आपका P0, क्योंकि P0 की प्रोसेस आईडी सबसे लेस है। तो अगेन P0 को हम सबसे प्रोवाइड करेंगे, तो 8 to 9 इसको जैसे ही प्रोवाइड करेंगे दिस विल बिकम 1। ओके, नाउ P1 और P2 के बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों का सेम है आपका और लॉन्गेस्ट है आपका, और तो इसमें लेकिन विनर हमारा कौन निकलेगा, P1, बिकॉज इसकी प्रोसेस आईडी लेस है, दिस विल बिकम 1। ओके, नाउ नाउ किसकी लॉन्गेस्ट है, क्लियरली यहाँ पे P2 विल बी इज द विनर, और इसको हम फिर से 1 यूनिट एलोकेट करेंगे, 1 यूनिट एलोकेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1। अब देखिए तीनों का क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, तो हम सबसे पहले P0 को एलोकेट करेंगे, लो प्रोसेस आईडी, तो 11 to 12। अब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, दिस हैज कंप्लीटेड, एग्जिट स्टेट में चला जाएगा। देन हम P1 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि लेस प्रोसेस आईडी है, 1 1 दोनों की है रिमेनिंग टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। लास्टली हम किसको एलोकेट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। लास्टली हम किसको एलोकेट करेंगे,
आपका P2 को एलोकेट करेंगे और ये कंप्लीट होगा कब 14 पे जाके। तो P2 आपका कब कंप्लीट हुआ 14 पे, P1 कब कंप्लीट हुआ 13 पे, P0 कब कंप्लीट हुआ 12 पे। अब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम इज CT माइनस AT, तो डायरेक्टली आपकी एज इट इज सेम वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज विल बिकम 30। होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। The problem related with this that we have to do the computation for LRTF। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा कि ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ये वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग। टाइम स्लाइस 1 सेकंड के टाइप से क्यों लिया गया है सर, 4 5 6 इस तरह? क्योंकि प्रीमिट मतलब ये सब तो बताया नहीं गया है, प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। ओके, क्या टाइम स्लाइस, यहाँ टाइम स्लाइस नहीं लिया गया है कहीं पे भी सर। यहाँ पर आप ले रहे हैं ना 4 से 5 5 से 6, मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस, तो ये ऐसा क्यों? नहीं मैं, अच्छा वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैंने 4 लिया है स्टार्टिंग। वैसी बात नहीं है कि टाइम स्लाइस कुछ रन हो रहा है, यहाँ पे ये है कि हर एक 1 सेकंड के बाद सिनेरियो क्या हो जा रहा है, रिमेनिंग टाइम का चेंज हो जा रहा है। रिमेनिंग टाइम का जो सिनेरियो है आपका स्टार्टिंग में क्या था, 8 था, 4 था, 2 था। तो हम क्या किए कि अब चूंकि इसमें विनर कौन हुआ, 8 हुआ, क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम सबसे हाई है। तो हमने क्या किया, 0 से डायरेक्टली 4 यूनिट तक प्रोवाइड किया, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो कब होगा, एट टाइम 4 पे जाकर के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, क्योंकि उस समय आपका P1 का भी जो रिमेनिंग टाइम होगा वो 4 होगा और P2 का भी रिमेनिंग टाइम 4 होगा। तो अब इसमें से हमको चूज करना होगा कि कौन विनर होगा। तो दोनों का तो सेम है रिमेनिंग टाइम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना कि इन LRTF टाइज आर ब्रोकन बाय गिवन द प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। तो जिनकी लोएस्ट प्रोसेस आईडी होगी, अगर टाई हो गया तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम P2 को क्या करेंगे, P2 से प्रोसेसर रिलीज करेंगे और उसको फिर से हम रेडी क्यू में लाएंगे और P1 को प्रोसेसर एलोकेट करेंगे। तो यहाँ हम P1 को प्रोसेसर एलोकेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और जैसे ही हम इसको एट टाइम 5 पे देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एट टाइम 5 पे आपका जो सिचुएशन होगा वो देखा जाए तो आपका जो P0 है, P0 का बर्स्ट टाइम तो 2 ही है। P1 का जो बर्स्ट टाइम हो जाएगा, चूंकि इसने 1 यूनिट प्रोसेस कर लिया है तो ये 3 हो जाएगा, और P2 का जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम हो जाएगा वो क्या रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है, P2 का है। तो हम क्या करेंगे, P2 को CPU एलोकेट करेंगे एट टाइम 5 पे। डिड यू गॉट माय पॉइंट? हम यहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल पे चेक करेंगे कि रिमेनिंग टाइम की वैल्यू क्या है। ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल पे चेक करेंगे। It is not the case that I am giving here as a time slice value. Okay, due to the change in the value of remaining time at each time interval, we have to check that which process has the longest remaining time. And if there is a conflict between some process that they have the same longest remaining time, then we will choose that process which have the lowest process ID, because here in the question itself it is given that how we will break the ties between various processes. Did you got my concept here for this question? अभी जो आपको एक्सप्लेन किया गया आपको समझ में आया? वी आर नॉट टेकिंग द टाइम स्लाइस वैल्यू। काइंडली रिस्पॉन्ड, डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट?
Yes, sir. Okay, so we will move forward for the next problem. Okay, so now again in this is a question asked in GATE 2016. Again, this is for the 2 marks, uh, and I'm giving you a time of 2 minutes to solve this problem. It is asked in GATE 2006 for 2 marks. Why I am discussing this question? Because here a new concept we will see. All of you, please attempt this question. Did somebody has responded? Okay, Ashish has responded with B and Pappu has also responded with B. Okay. Okay, we got 2 response for this question and both responses for B. लगता है आप लोग प्रायर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं. Okay, but try to solve any kind of question within 1 minute or 2 minute time. आप प्रायर भी सॉल्व कर रहे हैं मेरे क्वेश्चन देने से पहले भी, तब भी आप ट्राई करें कि उसको 1 या 2 मिनट में ही सॉल्व किया जाए. नाउ वी हैव टू, हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है, हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन वी हैव रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम. ओके, we have all these concept related, anything required to solve this problem. Okay, time is expired, so only 2 response, but both response is correct. Option B is the right choice for this particular problem. uh, Again, as the number of responses is very less, I think it is better for me to solve this problem. Okay, so let's try it quickly. The arrival time, priority, duration of CPU and input output burst for each of the 3 process P1, P2, P3 are given in the table. ठीक है, ये सारा information given है. Each process has a CPU burst followed by a input output burst and followed by another CPU burst. मतलब एक बार CPU में वर्क करेगा, फिर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में वर्क करेगा, फिर वो CPU में वर्क करेगा. ठीक है. Assume that each process has its own इनपुट आउटपुट रिसोर्स. मतलब सबके पास अपना इनपुट आउटपुट रिसोर्स होगा. जैसे ही उनका CPU में वर्क कंप्लीट होगा फर्स्ट फेज में, तो सेकंड में वो अपने इनपुट आउटपुट रिसोर्स के पास चले जाएंगे फॉर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग. ठीक है. The multi-program operating system uses primitive priority scheduling. Primitive priority scheduling का यूज किया जा रहा है, तो priority scheduling यूज की जा रही है. चलिए ये बात क्लियर है और primitive वर्जन है. अब पूछता है व्हाट आर द फिनिश टाइम ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3. P1, P2, P3 का फिनिश टाइम, इट मींस कंप्लीशन टाइम पूछ रहा है. लेट्स ड्रॉ द टेबल फर्स्ट. तो दिस आर द प्रोसेस. और यहाँ एक बात और है कि जिनका आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू गिवन है, इट मींस दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर दैट प्रायोरिटी. इट मींस वी विल पिक दैट जिनका की न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी इज लेस, तो दैट विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके, नाउ आपको CPU, then input output and then again CPU, ये 3 चीज, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. वी हैव प्रोसेस P1, वी हैव प्रोसेस P2, वी हैव प्रोसेस P3. अराइवल टाइम गिवन है 0 है, देन 2 है, देन 3 है. प्रायोरिटी आपको गिवन है 2 है,
3 है, 3 इज द लोएस्ट एंड 1 है विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए अगर हम सीपीयू के बारे में बात, यहाँ पे बर्स्ट टाइम के बारे में बात करें तो पहला 1 है, देन 3 है, देन 2 है, और इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम कितना रिक्वायर्ड है, 5 है, देन 3 है, देन 3 है। ठीक है, सीपीयू अगेन 3 है, 1 है, देन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है कि जितने भी प्रोसेस हैं उनका अपना क्या है, उनके पास अपना इनपुट आउटपुट क्यू है, या इनपुट आउटपुट आपका रिसोर्स है। तो ये इनपुट आउटपुट रिसोर्स फॉर 1, ये इनपुट आउटपुट रिसोर्स फॉर 2, ये इनपुट आउटपुट रिसोर्स फॉर 3। अब ये है आपका टाइमलाइन फॉर द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के लिए ये टाइमलाइन हम बना रहे हैं। अब देखेंगे एट टाइम जीरो वी हैव ओनली वन प्रोसेस विच इज P1। तो कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, P1 को ही एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, कितने देर इसको सीपीयू चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट ही एलोकेट करेंगे। इसका 1 यूनिट कंप्लीट हो गया, दिस विल बिकम 0। तो अब ये कहां चला जाएगा, अपने इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाएगा। तो ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, सभी के लिए अपना इनपुट आउटपुट रिसोर्स है। ठीक है, तो 1 पे आपका ये इनपुट आउटपुट अपने इनपुट आउटपुट रिसोर्स के पास चलाएगा और प्रोसेसिंग करेगा इनपुट आउटपुट के लिए। कितना रिक्वायर्ड है, 5 यूनिट रिक्वायर्ड है। इट मींस 1 से लेकर के 6 तक ये अपना वर्क करेगा। 6 पे हमें नेक्स्ट जाके ये अराइव होगा फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे अराइवल टाइम हम नेक्स्ट चेंज कर देते हैं 6। अब देखिए 1 पे नेक्स्ट हमारा कोई प्रोसेस आया नहीं है यहाँ पे, तो 1 नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कब आया है, 2 पे आया है। तो 1 से लेकर के जो 2 तक का इंटरवल होगा वो क्या होगा, आपका आइडल स्टेट में रहेगा सीपीयू, क्योंकि कोई प्रोसेस है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 2 पे जैसे ही ये आएगा तो P2 को हम सीपीयू एलोकेट करेंगे, क्योंकि अदर 2 पे एट टाइम 2 पे रेडी क्यू में एट टाइम 2 पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, P2 है। तो P2 को हम सीपीयू एलोकेट करेंगे एट टाइम 2 पे। अब हम कब तक एलोकेट करेंगे, इसको 3 यूनिट रिक्वायर्ड, इट मींस 2 से लेके 5 तक इसको रिक्वायर्ड है। बट एट टाइम 3 पे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इसको 3 तक के लिए तो हम प्रोसेसिंग करेंगे। इट मींस इसको हम 1 यूनिट प्रोवाइड किए, तो रिमेनिंग टाइम इसका कितना बच जाएगा, 2। अब 3 पे एट टाइम 3 पे हमारे पास P2 और P3 दोनों ही रेडी क्यू में रहेंगे, और किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो P3 की हाई है, तो P3 को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। अब चूंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और कोई इसको कंपीट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको पूरे देर के लिए जितना इसका रिक्वायरमेंट है उसको सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो 3 से लेकर के हम कितने देर इसको 2 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट इसको होल्ड देंगे, तो 3 से लेके 5 तक में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इट मींस P3 अब क्या होगा, एट टाइम 5 पे अपने इनपुट आउटपुट रिसोर्स के पास चला जाएगा, और इसको कितना रिक्वायर्ड है, 3 यूनिट का रिक्वायर्ड है। तो P3 क्या करेगा, 5 से लेकर के 8 तक प्रोसेस करेगा इन इनपुट आउटपुट। तो नेक्स्ट हमको P3 कब अवेलेबल हो पाएगा, 8 पे अवेलेबल हो पाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो। नाउ एट 5 पे, यस P2 सर इनपुट आउटपुट में नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन अब पहले तो वो अपना सीपीयू का वर्क कंप्लीट करे, तब तो वो इनपुट आउटपुट के लिए जा पाएगा ना। पहले उसका सीपीयू का वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके सर। सीपीयू का वर्क अभी बाकी है उसका। ठीक है, सो यहाँ पे अब 5 पे एट टाइम 5 पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितने प्रोसेस अवेलेबल होंगे। देखिए ये 6 पे आ रहा है, ये 8 पे आ रहा है, P2 ही सिर्फ अवेलेबल है, तो P2 हमारे पास सिर्फ अवेलेबल होगा 5 पे। तो हम क्या करेंगे, P2 को सीपीयू एलोकेट कर देंगे 5 पे। अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 6 पे आ जा रहा है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी देन P2।
तो हम क्या करेंगे 5 से लेके 6 तक तो हम क्या करेंगे P2 को रन होने देंगे। इट मींस कि अगेन ये 1 यूनिट रन किया और 1 यूनिट रिमेनिंग इसका रह गया। तो एट अ टाइम 6 पे हम क्या करेंगे, वी हैव अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू प्रोसेस इन रेडी क्यू, वन इज P2 एंड वन इज P1। तो अब क्या होगा, इसमें प्रायोरिटी किसकी हाई है, तो प्रायोरिटी हमारी हाई है किसकी, P1 की। तो P1 को हम CPU एलोकेट कर देंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, तो नेक्स्ट जो इसका कंपटीशन आ रहा है वो कब आ रहा है, 8 पे आ रहा है और इसको कितना रिक्वायर्ड है, 3 का है। तो इट मीन 6 to 9 चाहिए, तो लेकिन 8 पे क्या होगा, हमारा एक न्यू प्रोसेस आ जाएगा, तो 2 यूनिट हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, that remaining time will become 1। तो 6 to 8 हमारा ये रन करेगा। एट 8 पे अगर हम देखेंगे तो अब हमारा P1 भी अवेलेबल है, P2 भी अवेलेबल है और P3 भी अवेलेबल है। और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 की है, P3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो P3 को हम CPU एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए CPU चाहिए, 1 यूनिट के लिए CPU चाहिए। अब तो क्या करेंगे, 1 यूनिट इसको प्रोवाइड करेंगे तो 8 to 9 ये रन करेगा, दिस विल बिकम 0। तो P3 हमारा सिस्टम से कंप्लीटली बाहर चला गया। अब हमारे पास रेडी क्यू में P1 है और P2 है, और P1 P2 में हमारा प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, तो P1 की हाई है, देन P2। तो P1 को CPU एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए इसको चाहिए, 1 यूनिट के लिए चाहिए, तो 9 to 10 हम इसको CPU एलोकेट कर देंगे। ये भी हमारा एग्जिट हो गया। अब हमारा सिर्फ रह गया P2। तो P2 के लिए कोई कंपटीशन है नहीं, तो P2 को ही हम CPU एलोकेट करेंगे। अब कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट रिक्वायर्ड है इसको, तो 1 यूनिट देंगे तो 10 to 11 P2 आपका जाएगा, रन करेगा, और इसका आपका फर्स्ट CPU का काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हमारा 11 पे हम क्या करेंगे, इसको इनपुट आउटपुट क्यू को प्रोवाइड करेंगे। कितने देर के लिए करेंगे, 3 यूनिट इसको रिक्वायर्ड है। तो 11 से लेकर के 14 पे हम इसको इनपुट आउटपुट क्यू में रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये क्या होगा, 14 पे आके अराइव होगा। तो 11 से लेकर के हमारा चूंकि कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कब तक, 14 तक के लिए, तो हमारा क्या होगा, CPU आइडल स्टेट में रहेगा। अब 11 से लेके 14 तक CPU आइडल स्टेट में है, और नेक्स्ट तो 14 पे हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ P2। और कितने देर के लिए इसको चाहिए, 1 यूनिट के लिए चाहिए। तो हम P2 को क्या करेंगे, 1 यूनिट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट जो इसका रिक्वायरमेंट है, तो 14 से लेके 15 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0। तो अब यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज द फिनिश टाइम या कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो देखिए P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का कंप्लीशन टाइम है 15। नेक्स्ट P1 का क्या कंप्लीशन टाइम है, दैट इज 10। P3 का क्या कंप्लीशन टाइम है, दैट इज 9। ओके, सो दिस इज द scenario and option B is the right choice. Now I think all of you got the concept related with all problem which we have discussed today. I am providing you link for today's attendance. All of you kindly respond. Okay, I have provided you link for today's attendance. Kindly respond via that. अगेन आई एम आस्किंग यू, क्या सभी को जितने भी आज प्रॉब्लम बताए गए हैं, सभी को सारे प्रॉब्लम समझ में आए हैं? सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, हाँ, लेट्स सी। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने आज 2000 इसरो में 2013 में जो पूछा गया था उसको देखा था। तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि कोई आपका पर्टिकुलर कोई
पैरेलल प्रोग्राम कंपटीशन है जिसको की रिक्वायरमेंट है 100 सेकेंड का। और यहाँ पे ये कहा गया कि 20 आप चाहे कितना भी पैरेलल कंपटीशन कर लें 20% ऑफ द टाइम तो इसको सिक्वेंशियल करना ही करना है। तो रिमेनिंग 80% ऑफ द टाइम ये क्या करेगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन करेगा। तो अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड के लिए तो इसको सिक्वेंशियल करना पड़ेगा और 80 सेकेंड के लिए इसको पैरेलल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब हमको सिनेरियो गिवन है कि वी हैव टू टाइप ऑफ सिचुएशन। In one situation we have 2 CPUs and in second situation we have 4 CPUs। तो अब चूंकि 4 CPUs में पैरेलल कंपटीशन करना होगा तो क्या होगा, जो पैरेलल पार्ट है, जो 80 सेकेंड का पार्ट है, उसको हम 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो 20 सेकेंड सबके लिए आएगा और 20 सेकेंड उसको सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो 20 + 20 क्या हो जाएगा, 40। और अगर सीपीयू फर्स्ट सिनेरियो देखें तो 2 सीपीयू अवेलेबल होंगे, तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग का टाइम होगा उसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, 40-40। ठीक है, 20% ऑफ द टाइम ये क्या करेगा, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करेगा और रिमेनिंग जो 40 टाइम है ये क्या करेगा, पैरेलल करेगा। तो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 60। तो 2 सीपीयू में 60 एंड 4 सीपीयूज में 40। ठीक है, दिस इज द केस। Did you got the concept? Okay, we got the responses for the attendance. So I think सिर्फ एक न्यूमेरिकल और रह गया आज के सेशन में जो करना था, और ये न्यूमेरिकल आपका इसरो 2013 में पूछा गया था। और I want that all of you please try to solve this question by yourself. क्वेश्चन बहुत आसान है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। SRTF जो कि हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं उसी पे क्वेश्चन है। और बस ये यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी पूछी गई है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में पूछी गई है। ठीक है, ओके, आशीष हैज रिस्पॉन्डेड विद C and Pappu is also responded with 3. I'm telling you, your response is right, very much right. Okay, it is nice to see that all of you got the concept very nicely. Okay, so now all of you have responded with the attendance. Now I am stopping today's session here. So thank you, student. Have a nice day. We will meet in the next session.